नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश की संस्कृति और विकास में खानाबदोश समुदाय का योगदान अतुलनीय है, पल्लवी जी ने कहा। मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल को। नेशनल हेराल्ड मामला, भाजपा ने सोनिया राहुल के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा, जाति सर्वेक्षण वैज्ञानिक है। मंगलुरु में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति खानाबदोश विकास निगम के अध्यक्ष पल्लवी जी ने कहा कि हमारे देश के सांस्कृतिक गौरव, जीवन और विकास में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और घुमंतू समुदायों का योगदान अविस्मरणीय है। वे बीदर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित बीदर जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों खानाबदोश समुदायों की समस्याएं, चुनौतियां और समाधान विषय पर संगोष्ठी में भाग लेने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश जारी किए। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು? ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೊರತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ DC ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಜು ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಸಮುದಾಯ 78 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯ, ಯಾವುದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ನಾನೇ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈ ನಿಗಮಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೂರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಯಾವಾಗ, ನಿವೇಶನ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಭೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಳಲು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೂರು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿವೇಶನ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಭರವಸೆವಾಗೇ ಉಳಿತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಪ್ಪ ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2022ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2016ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ SC ST ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಗಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಈ ನಿಗಮದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಿಗಮ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಖುದ್ದು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಸೇತುವೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌಬಾದಲ್ಲಿ SC ಮಾದೇವಪ್ಪವರು ಇದ್ದಾಗ 84 ನಿವೇಶನಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 84 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಾಳ 4:30 ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾಳೆನೂ ಸಹ, ನಾಳೆ ಹೊರಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು DC ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿತೀನಿ ಅದನ್ನು
ಮಾಹಿತಿ. 17 ಅಲ್ಲೇ DC ಅವರು ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಿರಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸಿಂದೋಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮನೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಹಬೂಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೋಳು ಸಮುದಾಯದ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ, ಸಹೋದರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಳೆಕಂತ ಈಗಿನ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಹಂಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಚೇಳು, ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ AD ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ. 29 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45 ಬೀದರ್ ನಗರ ಉತ್ತರ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय और डॉक्टर APJ में 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिए पहले से आवेदन करने वाले छात्र अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन संचालित अब्दुल कलाम आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का ज्ञान सुधा विद्यालय मामनकेरी, सिद्धार्थ संयुक्त प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जनवाड़ा रोड बीदर एवं विद्यारण्य हाई स्कूल डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्किल जनवाड़ा रोड बीदर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dom.karnataka.gov.in से ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक जिला कार्यालय व तालुका कार्यालयों या बीदर तालुका अल्पसंख्यक अधिकारी उमेश मोबाइल नंबर 9448844387, हुमनाबाद तालुका अल्पसंख्यक अधिकारी शिव कुमार मोबाइल संख्या 6361879744 से संपर्क कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। शिवमोगा जिले के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर के शिवप्पा नायक पैलेस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में उनके और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की है और विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, सोनिया और राहुल के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सांसद BY राघवेंद्र के घर का घेराव करने की कोशिश करने वाले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कृत्य की निंदा की। उन्होंने कहा कि अदालत में केस लड़ने के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर पर हमला करने की कोशिश की और डाकघर के सामने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपराध करने वालों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और यह अपरिहार्य है। विधायक SN चन्नबसप्पा ने कहा, आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा है।
इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को विभाजित किया और आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा दान किए गए धन का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को खुश करने के लिए पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है और उन्हें पीएम मोदी की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन दोनों को अपने द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जाति सर्वेक्षण के आलोचकों पर सवाल उठाते हुए राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा ने कहा कि यह वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। 14 देहनहल्ली में आयोजित एक ग्रामीण मेले में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने भी अपनी राय व्यक्त की है और अगला निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का होगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्तृत चर्चा के बाद मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे और व्यक्तिगत राय को लेकर कोई विवाद नहीं है। मंत्री ने कहा कि चर्चाओं को लेकर गलत प्रतिक्रियाएं और गलतफहमियां हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह अवैज्ञानिक है। चर्चाएं तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यह कहानी सही नहीं है कि यह अवैज्ञानिक है। सर्वेक्षण में करीब 1.3 करोड़ परिवार और करीब 6 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया है। क्या वे सभी एक ही जाति और धर्म के हैं? उन्होंने सवाल किया। साथ ही जनगणना 30,000 गांवों में की गई थी। मंगलूर के बाहरी इलाके कन्नूर अडयार में नए वक्फ अधिनियम के खिलाफ कर्नाटका उलेमा कोटा के तहत एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कोडगु और चिकमंगलूर जिले और केरल के कासरगोड जिले के हजारों लोगों ने भाग लिया। दक्षिण कन्नड़ जिला खाजी त्वाका अहमद मुसलियार और उडुपी संयुक्त खाजी अब्दुल हमीद मुसलियार मणि के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। दक्षिण कन्नड़ खाजी अहमद मुसलियार ने कहा कि वक्फ मुसलमानों का अधिकार है और वे फासीवादी ताकतों को इससे छीनने नहीं देंगे। राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मौलाना शफी सादी ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से बुलडोजर चलाने वालों का ईंधन अस्थायी रूप से खाली कर दिया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुल्क स्थित बप्पंडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में वार्षिक उत्सव के तहत मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सव के दौरान मंदिर के रथ का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर गया। यह घटना शनिवार को ब्रह्मोत्सव के दौरान रात 1:40 से 2 बजे के बीच घटी। उस समय पुजारी रथ पर बैठे थे और हजारों भक्तगण नीचे से उत्साहपूर्वक रथ को खींच रहे थे। अचानक रथ को नियंत्रित करने वाली रस्सी टूट गई, जिससे रथ का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जमीन पर गिर गया। इस घटना से मौके पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। बाद में चंद्रमंडल रथ पर सवार होकर भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। उत्सव में बाकी अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के चलते रहे। जैसे ही रथ एक तरफ झुका, लोग किसी भी खतरे से बचने के लिए जल्दी से दूसरी ओर भाग गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीदर और शिवमोगा में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी में शामिल होने वाले छात्रों से उनके जनेऊ उतारने को कहे जाने की घटना के बाद कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण के ईए के कार्यकारी निदेशक एच प्रसन्ना ने दोनों जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रसन्ना ने कहा है कि ईए के 2 अलग अलग घटनाओं को गंभीरता से लिया है, जहां छात्रों को या तो पवित्र धागा पहनने के कारण सीईटी लिखने का अवसर नहीं दिया गया या उन्हें इसे हटाने के बाद परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। केईए ने कड़ी चेतावनी जारी की है और इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ड्रेस कोड दिशा निर्देशों में कहीं भी जनीवर उतारने का आदेश नहीं दिया गया है, इसलिए इन दोनों जिलों के परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की हरकतें निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गहन जांच की जाएगी। केईए अधिकारी ने कहा कि बीदर की घटना में एक छात्र को जनीवर के कारण गणित की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। नतीजतन छात्र नियमों के अनुसार इंजीनियरिंग रैंक के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि इस मुद्दे के लिए छात्र को दंडित करना उचित नहीं होगा। हम उच्च शिक्षा मंत्री से परामर्श करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र को अनुचित रूप से नुकसान न हो और उचित कदम उठाए जाए। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर ने विपक्ष के नेता आर अशोक पर उनकी इस टिप्पणी के लिए पलटवार किया कि पार्टी शिवराम हेब्बार और उनके जैसे नेताओं पर विचार नहीं किया। सोमशेखर ने अशोक से कहा
कि जब तक पार्टी को केंद्रीय अनुशासन समिति उनके रुख के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लेती तब तक वह चुप रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सोमशेखर ने कहा कि अगर मुझे भाजपा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो अशोक पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उन्होंने याद किया कि भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने कई साल कांग्रेस में बिताए थे, जहां उन्होंने 3 साल तक मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में रहने के दौरान मैंने कभी पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लिया। 18 अप्रैल को मंगलूर शहर में अड़ियार कन्नूर के पास शाह गार्डन मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस के एक वाहन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने वाले दृश्य मीडिया के एक वीडियो क्लिपिंग के प्रसारण के बाद पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि वाहन का इस्तेमाल एक घायल नाबालिग लड़के को अस्पताल ले जाने के लिए किया गया था। आयुक्त ने बताया कि यातायात नियमन ड्यूटी पर तैनात यातायात उपविभाग के एसीपी विभागीय वाहन में पड़िल की ओर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उतरने के बाद वह मुख्य द्वार पर पास यातायात नियंत्रण का प्रबंधन कर रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एसीपी ने अपने ड्राइवर को अड़ियार कट्टे के पास यू टर्न लेने और सड़क के मध्य भाग को पार करने के बाद वापस लौटने का निर्देश दिया ताकि आगे यातायात नियंत्रण प्रबंधन के लिए मंगलूर शहर की ओर जा सके। अड़ियार कट्टे के पास लगाए गए बैरिकेड के कारण वाहन चालक बैरिकेड यू टर्न लेने के लिए सहाद्री की ओर बढ़ रहा था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश की संस्कृति और विकास में खाना बदोश समुदाय का योगदान अतुलनीय है, पल्लवी जी ने कहा। मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 27 अप्रैल को। नेशनल हेराल्ड मामला, भाजपा ने सोनिया राहुल के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा जाति सर्वेक्षण वैज्ञानिक है। मंगलूर में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।